Well, in a worrying piece of breaking news that's coming in just now from Chamoli, a glacier has now broken in the Badrinath Dam area after heavy snowfall. This is the preliminary information coming in suggesting that a glacier broke on the national highway connecting Managastoli. Information is being received about 57 workers currently being buried under snow. Administration and the BRO teams have left for the spot for a rescue operation. Workers of a private contractor were engaged in a road construction work when this glacier broke, and this has resulted in this massive tragedy. In fact, 57 workers are currently trapped under snow is what we are picking up right now. They were engaged for a road construction work by a private contractor. This is in Chamoli that we are talking about, and this is in Badrinath Dam. This entire glacier breaking is attributed to Badrinath Dam receiving heavy snowfall. The regions around Badrinath Dam receiving heavy snowfall. In fact, the road connecting work was happening where the national highway connects Managastoli. That's where this tragedy has taken place. And right now the preliminary information is that at least 57 workers have been trapped under snow. The district administration, the BRO and various other rescue workers have now rushed to the spot. These workers were working for a private contractor as part of a road construction project is what we are picking up. Remember, there has been a huge concern around Chamoli and other districts about the impact of climate change on glaciers and the impact that we have seen earlier as well when there have been similar tragedies, and now in one such tragedy at least 57 workers trapped under snow. This is initial information coming in, no word in yet on the condition of these people and also the other areas that have been affected because of this. But at least in one project site, nearly 57 people have been trapped is what we are understanding. The district administration has mobilized rescue officials. In fact, Anupam Trivedi, my colleague, joins us for more on this. Anupam, अभी फिलहाल preliminary information क्या है इसके बारे में, कैसा और कब हुआ ये हादसा? I beg your pardon, my colleague Nitin joins us for more on this. Nitin, अभी फिलहाल preliminary information क्या है, कब हुआ ये हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितने लोगों को इधर भेजा जा रहा है? जी, अगर इस पूरे हादसे की बात करूं तो आज जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसके बाद लगभग सुबह के आसपास ये एवलांच टूटकर नेशनल हाईवे पर आया है जो माणा से घस्तोली को जोड़ता है। वहां पे बताया जा रहा है कि कुछ सड़क बनाने के निर्माण में लगभग 50 से अधिक लगभग संख्या बताई जा रही है। 57 मजदूर वहां पे लगे हुए थे, वहां पे वो अस्थायी तौर पर रह रहे थे अपने घरों में, तो उनके ऊपर ये पूरा ग्लेशियर टूटकर आया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये 16 लोग अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 41 लोग हैं वो अभी मिसिंग चल रहे हैं, तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे जैसे वहां पे रेस्क्यू आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से ITBP और गढ़वाल स्काउट या अन्य जो वहां पे लोकल बॉडी है उनसे थोड़ा सा वहां पे मदद ली जा रही है, और जैसे ही थोड़ा सा रेस्क्यू आगे बढ़ेगा तो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। जी नितिन जी, ये जो रीजन जहाँ पर ये हादसा हुआ है, एक अंदाज़ा दीजिए हमें कैसा है रीजन और रेस्क्यू एफर्ट्स और रेस्क्यू वर्कर्स को उधर पहुँचने में कैसा चैलेंजेस रहेगा अभी? जी, अगर चैलेंज की बात करें और सबसे पहले अगर हम अपने दर्शकों को एरिया के बारे में बता दें तो ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे की ये घटना है। भारत का जो प्रथम गांव माणा है उसके पास एक नाला बहता है, छोटी सी नदी बहती है, उस नदी के ऊपर ये ग्लेशियर टूट कर आया है।
पिछले अगर बात करें तो पिछले 36 से 37 माफ कीजिएगा 26 से 27 घंटे हो चुके हैं पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। और उस बर्फबारी के बाद ये पूरा ग्लेशियर नीचे की तरफ टूट कर आया है। और यहाँ पे देखा जाता है कि हर वर्ष हम देखें तो यहाँ पे ग्लेशियर रहते हैं और इसी तरीके से ग्लेशियर टूटते रहते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पे कुछ लोगों के घर बनाए गए थे, जो एक बड़ी लापरवाही भी है कि ग्लेशियर के ठीक अगल बगल घर बन गए थे और तो वो इसके चपेट में आ गए और उनको वहाँ पे नुकसान पहुंचा है। जी नितिन, इंफॉर्मेशन आ रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी हेवी स्नोफॉल हुआ है इस एरिया में। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई वार्निंग दिया था? क्या लोगों को उधर से इवैक्यूएट करने की कोई कोशिश हुई थी क्या? जी निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन जो चमोली जनपद का प्रशासन है उसने सबको अलर्ट मोड पर रखा था, ऐसा नहीं है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट मोड पर रखा था कि येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, भारी से भारी बर्फबारी की चेतावनी पहाड़ों में जारी की गई थी। तो उसके बाद से ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही जरूर है। अब ये देखना होगा कि किसकी तरफ से लापरवाही हुई है। क्या वहाँ पे लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो सकती है? तो अब ये सारी चीजें तो बाद जांच की बात है। पहले तो सबसे पहले जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, अभी प्रशासन का ये कहना है कि हमको उनको सुरक्षित निकालना है। जी नितिन जी, इनफैक्ट आप चामोली के बारे में बात करें तो ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं लास्ट 4-5 ईयर्स में। क्या स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लान लेकर आया है ताकि ऐसे हादसों को प्रिवेंट किया जाए? जी अगर बात करें तो पहाड़ों में इस तरीके के हादसे जरूर होते रहते हैं। और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, बेमौसम बर्फबारी हो रही है, जो बर्फबारी जनवरी और दिसंबर के महीने में होनी चाहिए वो फरवरी में आके हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से या कहे हम जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां यहाँ पे नहीं हो पाती है। फरवरी के महीने की अगर बात करें तो सेकेंड वीक तक यहाँ पे गर्मी बढ़ गई थी और अचानक अब लास्ट वीक तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे अचानक से ठंड लौट गई है। तो ये केवल एक पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर होती थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे ग्लेशियर टूटा है, इस एवलांच टूटने की घटनाओं उनको मौसम विभाग ने पहले ही सतर्क कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये टूटा है तो ये लापरवाही जरूर हुई है। कहाँ से लापरवाही हुई है ये देखने वाली बात होगी। जी नितिन जी, आप हमें बता रहे थे कि ये रीजन जो है, ये एरिया जो है काफ़ी रिमोट एरिया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम्स को कहाँ से मोबिलाइज किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल्स भी जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो कहाँ से इन लोगों को, इन टीम्स को अभी मोबिलाइज किया जा रहा है और कितनी देर में ये लोग पहुँचेंगे इधर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मुश्किल ये है कि 20 किलोमीटर का जो दायरा है, जहां तक स्पॉट तक पहुंचने में लगभग 20 किलोमीटर सड़क को पार करना पड़ेगा। वहां पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर टूट कर आए हैं, वहां पे सड़क को क्लियर करके पहुंचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं प्रशासन के सामने वहां पे पहुंचने में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में अभी भी ITBP, गढ़वाल स्काउट और BRO की एक टुकड़ियां तैनात रहती हैं, वो रेस्क्यू वहां पे कर रही हैं। अगर हम चमोली प्रशासन या अन्य रेस्क्यू टीमों की बात करें तो नामुमकिन है कि वो आज रात तक वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने के बाद लगातार सड़क मार्ग बंद हो रही है। तो उसमें जो स्थानीय प्रशासन है वो सड़क मार्ग से तो वहां पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो लोग अभी वहां पे रह रहे हैं, बताया जा रहा है कि वही लोग वहां पे रेस्क्यू करेंगे और उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। जी तो अगला प्रश्न होगा नितिन जी कि अभी फिलहाल मौसम कैसा है? क्योंकि आप बता रहे कि रोड सारे लैंडस्लाइड या ये ग्लेशियर टूटने से सारे बंद हुए हैं। तो क्या हेलीकॉप्टर से अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं? कैसा है अभी मौसम उधर? जी मैं आपको अगर मौसम की पूरी अपडेट दूं तो अभी भी बर्फबारी लगातार हो रही है और अभी 5 से 6 घंटे और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का। तो लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि जितने भी मैदानी इलाके हैं चमोली जनपद के वहां तक बर्फ पहुंच चुकी है। हिल स्टेशन में तो हुई है लेकिन निचले इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी अभी भी जारी है और मौसम लगातार बदला हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। संभवतः यह है कि जो ITBP बद्रीनाथ धाम में तैनात है, देहरादून 23 बटालियन, वो वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है और जो स्थानीय लोग, एक क्या दुक्का जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो लोग वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। जी
नितिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ. Just for viewers joining us right now, this is a big breaking news coming in from Chamoli. A glacier breaking has resulted in 57 people being trapped